I hope you all are healthy and safe at your home. So, today we are going to start our next topic, that is augmented assignment operator. In the previous video, I had started operators and we had discussed about the arithmetic operators. Now, in this particular video, we will be discussing about augmented assignment operator and relational operators. Right? Now, what is augmented assignment operator? We are very much aware about the assignment operator and arithmetic operator. Now, augmented assignment operator is a combination of arithmetic operator and assignment operator. Augmented assignment operator is basically the combination of arithmetic operator and assignment operator. Now, what is the basic use of augmented assignment operator? Augmented assignment operator is used to decrement or increment a value of a particular variable. If you want to increase or decrease the value of a particular variable, at that time we use augmented assignment operator. Now here, this is the notation. This is the notation of your augmented assignment operator. Now this plus or equal to is basically the combination of arithmetic operator and assignment operator, and this is equivalent to a equal to a plus b. It means what? That you are adding some value to the variable itself, right? And again you are assigning to the variable. So here you can take an example, a equal to a plus 10. It means what? That suppose earlier the value of a was 5. Now what you want? You want to increase its value by 10. So you have to write like this, a equal to a plus 10, right? Because you want to increase the value of variable a by 10. Now here I have written a plus equal to 10. It means what? That you are increasing the value of a variable a by 10. So this is a augmented assignment operator. Now here are some other example of augmented assignment operator, that is x plus equal to y. Now it is equivalent to x equal to x plus y. Here x minus equal to y equal to में x equal to x minus y, right? I hope you got the point. Take another example, like you have a equal to में 5. Now you want to decrease its value by 2. So you have to write like this, a equal to a minus 2, because you want to decrease its value by 2. So you can write this particular expression like this, a minus equal to 2, right? So this is the basic use of augmented assignment operator to increase or decrease the value. Now next we have relational operator. Now next we have relational operator. Now what are relational operators? As the name suggests, that relation means that these operators will determine a particular relation between two operands, right? So these operands determine a relation among different operands. ठीक है? डिफरेंट ऑपरेंड के बीच में रिलेशन जो डिटरमाइन करते हैं उनको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स. These operators also known as comparison operators, because they will compare the value of operands and then they will decide the relation, that what is the relation between two operands after the comparison. ठीक है? So if the comparison is true, the result is expressed with the boolean value true, and if the comparison is false, if the comparison is true, then it is expressed with the boolean value true, and if the comparison is false, then then result is expressed with the help of false, right? अगर आपका कंपैरिजन ट्रू होता है तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा. रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा.
लेकिन अगर आपका कंपैरिजन फॉल्स होता है तो आपको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, फॉल्स. नाउ वी हैव 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स. फर्स्ट इज लेस देन, next is less than or equal to. Sometimes student says less than and equal to. Now there is difference between or and. ठीक है, ये हमने डिजिटल लॉजिक्स के अंदर काफी डिटेल के अंदर किया था, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ और एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट लेस देन इक्वल टू मीन्स लेस देन और इक्वल टू instead of less than and equal to, right? Now next we have equal to. Now don't confuse with single equal to and double equal to. Double equal to means it is equal to operator, and single equal to means it is assignment operator. ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. जो हमारा सिंगल इक्वल टू होता है उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन जो हमारा डबल इक्वल टू होता है वो हमारा होता है इक्वल टू. जैसे अगर मैं बोलूं a इक्वल टू में 4, it means that we are assigning 4 to a variable a. But if I write like a equal to double equal to b, it means what? Now we are comparing the value of a and b, whether a and b are equal or not. ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और इस केस में हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ नॉट इक्वल टू, this is not equal to. Now next we have greater than and greater than or equal to. Greater than or equal to, right? Now take some example. Now we have working principles of relational operators, that how your relational operator works in the Python language. आपके पाइथन लैंग्वेज के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स है वो हमें पता होने चाहिए. सो फॉर द न्यूमेरिक, the values are compared after removing trailing zeros after decimal point from a floating point number. Now what is the meaning of this particular definition? It means what? If we have two operand, that is 2 and 2.0, right? So this is integer, and this is floating point number. And if a floating point number is having 0 after decimal point, then we have to remove it before comparison. अगर हमारे किसी ऑपरेंड में एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और उस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 0 होता है, तो हमें कंपैरिजन से पहले उस 0 को रिमूव करना है और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2.0, तो 2.0 है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हमें पहले 0 को रिमूव करना होगा और फिर हम कंपेयर करेंगे अपने फर्स्ट ऑपरेंड से. तो ये ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है. तो ये हमारा पाइथन शेल, पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट है, ये आपको पता होना चाहिए. हम पाइथन शेल की मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखी है. सो 2 इक्वल टू 2.0, यस ट्रू, बिकॉज जब हम 2.0 से 0 को रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 2. नाउ दिस 2 and this 2 is same, so that's why we will get true here. Now but if we have two operand, that is 2 and 2.5, अगर आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विदाउट 0 है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2.5, राइट, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है हमारा और ये हमारा इंटीजर है. तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स, बिकॉज यहाँ पर हम 5 को रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज नॉट अ 0, इट इज अ पर्टिकुलर नंबर, राइट. तो वैल्यू जो न्यूमेरिक पार्ट होगा उसमें क्या होगा कि अगर एक ऑपरेंड के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और उस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आता है, तो हम 0 को रिमूव करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने नोट लिखा हुआ है that 2 and 2.0 will be treated as equal. क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हम 0 को रिमूव कर देंगे, तो जो ये 2 है सेकंड वाला, ये फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, राइट. नाउ फॉर द स्ट्रिंग वैल्यू, हाउ डू वी
compare the value of operands. ठीक है. So for the strings are compared on the basis of lexicographical ordering and alphabets or characters are compared on the basis of ASCII value. ठीक है. मान लीजिए आपने एक वेरिएबल कंसिडर किया, आपने वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर क्या स्टोर किया है, स्ट्रिंग वैल्यू को. तो दो स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग. लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग का मतलब क्या है कि डिक्शनरी के अंदर जिस तरीके से हमारे वर्ड्स लिखे होते हैं वो उस तरीके से हम कंपेयर करेंगे. जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी. ठीक है. सपोज ये ए इक्वल टू ए है और ये b इक्वल टू बी है. ठीक है. तो ये एक वेरिएबल है a है और ये b सेकंड वेरिएबल है. इन वेरिएबल a we have a character and in the variable b we have b character, right? Suppose now if we write a less than b, then answer will be true. ट्रू क्यों होगा, क्यों ट्रू होगा? क्योंकि हमारे डिक्शनरी में सबसे पहले वर्ड क्या आता है, ए आता है, और उसके बाद क्या आता है, बी आता है. तो बड़ा कौन होगा, जो बाद में आएगा. ठीक है, जो बाद में आएगा. ठीक है. तो इसलिए जो बी है वो ग्रेटर देन है किससे, ए से. समझ में आया? अभी कुछ एग्जांपल देखेंगे हम. यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है. नाउ ए इज अ वेरिएबल and God is a string which is holded by variable a, and in the b variable we have God house. In the b we have God house. Now we are comparing the value of a and b here. A less than b, yes, true, because God comes before God house in the dictionary. जब आप डिक्शनरी के अंदर सर्च करेंगे वर्ड को तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, गॉड मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, गॉड हाउस मिलेगा. तो लेसर वैल्यू किसकी है, गॉड की है. ठीक है. ग्रेटर वैल्यू किसकी है, गॉड हाउस की. ठीक है. नाउ इफ वी कंपेयर ए ग्रेटर देन बी, तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो क्या है, लेसर है किससे, बी से. ठीक है. नाउ ए लेस देन और इक्वल टू बी, तो ए तो लेस देन है ही बी से, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ट्रू. नाउ यू आर मच अवेयर अबाउट द और ऑपरेशन. व्हाट इज द meaning of for operation? If any of the input is high, then output will be high, or you can say that if any of the value, or if any of the input is true, then output will be true, right? तो देखो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है, तो हमारा a जो है वो b के इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन जरूर है, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ट्रू हेयर. नाउ हेयर यू कैन सी दैट a ग्रेटर देन और इक्वल टू b. अब देखो a जो है ना तो वो क्या है, b से बड़ा है, ना ही इक्वल है, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग फॉल्स हेयर. ठीक है. तो लेक्सिकोग्राफिकल का मतलब ये होता है कि आपके डिक्शनरी में वर्ड किस तरीके से लिखे होते हैं वैसे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज को. ये आपको समझना है अच्छे से. ठीक है. देखो मैंने यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, गॉड कम्स बिफोर गॉड हाउस इन डिक्शनरी, सो गॉड इज स्मॉलर देन गॉड हाउस. समझ में आया? नाउ नेक्स्ट वी हैव a इक्वल टू a एंड b इक्वल टू a. अब कंपेरिजन किस तरीके से होगा, कंपेरिजन कैसे होगा? We know that the value ASCII value of smaller a is 98, smaller a is 97, sorry, and capital A is equal to 65. ठीक है. अब हमें कंपैरिजन करना है. ठीक है. तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है किसमें, ASCII वैल्यूज के अंदर, और उसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करना है वैल्यूज को, और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a लेस देन b. A is less than B? No. Why? Because
A is having the higher value than capital A. So it is false. A greater than B? Yes, because small a is higher than capital A. A less than equal to B? False, because A is neither less than nor equal to B. Nor equal to B. So that's why we are getting false here. Now compare 97, you can write like this here. ठीक है, आपको इजी होगा. 97 एंड 65. अभी कह रहा है ए ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल टू बी. आपको ऐसे पढ़ना है, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी. यस, ए इज ग्रेटर देन बी बट नॉट इक्वल टू बी. लेकिन हमारी ए कंडीशन तो ट्रू हो रही है, तो और के केस में अगर ए कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? ट्रू ही मिलने वाला है. सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ट्रू हियर. नाउ ए इक्वल टू बी 97 65. whether 97 is equal to 65? No. So that's why we are getting false here. Now compare again here 97 and 65. Now it is saying that A is not equal to B. Yes, because the value of A is 97 and the value of B is 65. That's why A is not equal to B and that's why we are getting true here. ठीक है, समझ में आया? तो आपको एसकाई वैल्यूज याद होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं. तो स्ट्रिंग को आप कैसे कंपेयर करेंगे? लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग के अंदर डिक्शनरी में जैसे वर्ड्स को हम कंपेयर करते हैं. लेकिन अगर आपको करेक्टर को कंपेयर करना है तो आपको उसकी एसकाई वैल्यू से कंपेयर करना है. ठीक है. नाउ ये एक समराइज टेबल बनाई है जिसमें आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से पता चलेगा. नाउ these are the input, that is P and Q. P is having 3 and Q is having 3.0. अभी बताया था कि अगर 3.0 आता है तो हम 0 को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे. So P less than Q? No, P is not less than Q. So that's why we are getting false here. P less than or equal to Q? Yes, P is not less than Q but it is equal to Q. So that's why we are getting true here, right? P equal to Q? Yes, because the value of P is 3 and the value of Q is 3 after removing 0. So that's why we are getting true here. Now P is greater than Q? No, because the value of P is 3 and the value of Q is 3. So it is false. P greater than or equal to Q? P is not greater than Q but it is equal to Q. That's why we are getting true here. P is not equal to Q? False, because P is equal to Q. ये false क्यों हुआ? क्योंकि ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, तो ये बोल रहा है कि क्या P Q के इक्वल नहीं है? लेकिन हमारे केस में तो है. हमारे केस में तो P इक्वल है ना Q के. सो दैट्स व्हाई वी विल गेट false here. ठीक है. नाउ अब देखो सेकेंड वैल्यू क्या है? 6 and 4. P is having 6, Q is having 4. P less than Q? No, it is false because the value of P is greater than Q. So that's why we are getting false here, right? Now next, P less than equal to Q? False. P is neither less than nor equal to Q. Now compare P equal to Q? No, P is not equal to Q. P greater than Q? Yes, P is greater than Q because the value of P is 6 and the value of Q is 4. Now P greater than equal to or equal to Q? P greater than or equal to Q? Yes, P is greater than. So that's why we are getting true here. P not equal to Q? Yes, it is not equal to Q. That's why we are getting true here. अब देखो इस केस के अंदर हमें ट्रू क्यों मिला? क्योंकि P और जो Q है वो इक्वल नहीं है और वो ये ही बोल रहा है कि क्या P Q के इक्वल नहीं है? यस, नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग
ट्रू हेयर। ठीक है, अब इसमें कंपेयर करके देखते हैं। ए की अभी बताई थी वैल्यू क्या होती है 65, यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या 65 लेस देन है 65 से, नो, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग फॉल्स हेयर। कि क्या 65 लेस देन और इक्वल है 65 के, यस। 65 लेस देन तो नहीं है 65 के, लेकिन 65 इक्वल टू है 65 के, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ट्रू हेयर। P equal to Q, yes, P equal to Q, because P and Q both are having same value, that is 65, so that's why we are getting 65, oh sorry, true here. P greater than Q, false, because 65 is not greater than 65. P greater than or equal to Q, yes, true, because 65 equal to 65. P not equal to Q, अभी तो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि भाई P जो है वो इक्वल टू है ट्रू के, ओ सॉरी Q के, तो हम यहाँ पे ये क्यों बोल सकते हैं कि भाई P इक्वल टू नहीं है Q के, सो इट इज फॉल्स हियर। ठीक है, नाउ B, अब B इज हैविंग 98 हेयर एंड इट इज 66। ठीक है, तो अब देखो 98 इज लेस देन 66, फॉल्स। 98 लेस देन और इक्वल टू 66, फॉल्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 98 लेस देन 66, 98 लेस देन इक्वल टू 66, 98 लेस सॉरी इक्वल टू 66, फॉल्स, क्योंकि 98 जो है वो 66 के इक्वल नहीं है। सो 98 ग्रेटर देन 98 ग्रेटर देन 66, yes, it is true. 98 greater than or equal to 66, yes, it is greater than, but not equal to 66, but we will get true here. So P not equal to Q, yes, true. ठीक है, समझ में आया? आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, टू फाइंड order of a character we have a function that is order character, एग्जाम्पल order b। अगर आपको किसी कैरेक्टर की a से लेके z तक की किसी की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, एसकाई वैल्यू को फाइंड करना है, तो आप यूज कर सकते हैं ऑर्डर फंक्शन, दैट इज ORD, और यहाँ पर आपको कैरेक्टर लिखना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो हमें क्या मिला 65। ठीक है, तो ये 65 क्या है, एसकाई वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने डिस्कस किया ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स इन द पाइथन लैंग्वेज। सो वी हैव डिफरेंट प्रिंसिपल फॉर न्यूमेरिक वैल्यू एंड फॉर द स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, और ये मैंने एक समराइज आपको पूरी टेबल समझा दी है। अब हम इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, दैट हाउ आवर relational operator works in the Python language. ठीक है, now open your Python shell in your laptop or PC. So here I am giving a equal to 10, b equal to 5. Now we will use each and every relational operator. So print a less than b, false, because a is not less than b. Print a greater than b, true. Why true? Because the value of a is 10 and the value of b is 5. So a is greater than b. Now print a less than equal to b. तो रिजल्ट बताओ मुझे क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों हुआ? बिकॉज a is neither लेस देन और इक्वल टू b। ठीक है, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी सॉरी कॉपी paste it here and change the symbol. ठीक है, now true,
ठीक है, वाई ट्रू? बिकॉज ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, नाउ कंपेयर प्रिंट सॉरी ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू बी। तो देखो ट्रू, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 5। ठीक है, इसीलिए हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है? ट्रू है। तो ये था हमारी न्यूमेरिक वैल्यू, ये थी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू पे हमारा जो ऑपरेटर्स है वो किस तरीके से काम करते हैं। अब मैं आपको स्ट्रिंग वैल्यूज पे दिखाता हूँ। दैट इज सपोज ए इक्वल टू वी हैव गॉड, ठीक है, एंड बी इक्वल टू वी हैव गॉड हाउस। ठीक है, सो नाउ ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू, बिकॉज ए जो है आपके डिक्शनरी में पहले आता है गॉड हाउस से। अब देखो अगर मैं सेम इसको कंपेयर करता हूँ ए ग्रेटर देन बी, सो इट विल गिव फॉल्स। वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज लेस देन द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि आपका जो बी है गॉड हाउस, ये आपका बाद में आता है आपके गॉड से, आपके डिक्शनरी में। तो जो बाद में आता है उसकी वैल्यू ग्रेटर होती है पहले आने वाले वर्ड से। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, तो देखो ट्रू मिलेगा। सेम अगर हम यहाँ पे इसको ग्रेटर देन करते हैं तो हमें देखो क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, बिकॉज ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। सेम अगर हम यहाँ पे इक्वल टू करते हैं तो देखो इक्वल टू में क्या मिलने वाला है? फॉल्स मिलेगा, अगेन फॉल्स मिलेगा। ठीक है, राइट। और फिर अगर हमारा जो लास्ट है दैट इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू सॉरी, तो देखो ट्रू मिलेगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, दैट्स वाई वी आर गेटिंग ट्रू हेयर। अब हमारे जो करेक्टर्स है वो कैसे काम करते हैं? तो सपोज आपने ए इक्वल टू में क्या लिखा? बी, एंड बी इक्वल टू वी हैव कैपिटल बी। ठीक है, नाउ व्हाट यू वांट? you want to compare, that is a less than b, so we are getting false here because the smaller b is having higher value than capital B। ठीक है, क्योंकि s का ही वैल्यू ऑफ स्मॉलर b is what 98 and the value of capital B is 66। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर इसको ग्रेटर देन करेंगे तो देखो अब ट्रू मिलेगा, because the value of a is greater than b। now print less than equal to false। ग्रेटर में क्या होगा? क्या होगा ग्रेटर में? ट्रू होगा, राइट। so this is the way how you can use relational operators in your python programming language। ठीक है, so do your practice in your laptop or pc and try to practice these questions as much as possible। ठीक है, so if you feel any doubt you can ask me and prepare the notes in your notebook from this video। Thank you।